Good morning all of you. So today we will discuss chapter number 3, ruling the countryside, question answers. In the previous session, as you all know, we have done the notes of ruling the countryside. Today we will do its question answers. So we will start its question answer. Our first question is, you have to match the following. What we have to do? Match the following. It is a question. Royal, village, mahal, peasants, niche, cultivation, royalty, cultivation on planters, own land. So what is royal? Royal is another name of peasants. Mahal is called a village. Niche, cultivation on planters, own land, and royalty is cultivation on royalties land. Now Phillips. Growers of wood in Europe saw dash as a crop which would provide competition to their earning. यूरोप के लोगों ने क्या देखा, क्या ग्रो हो रहा था? वुड ग्रो हो रहा था ऑलरेडी. नाउ व्हाट दे हैड सीन? They had seen that now in India indigo was growing. What was growing? Indigo. So its answer is indigo. The demand for indigo increased in the late 18th century Britain because क्यों इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो रही थी? Why the demand of indigo increased? Because as the expansion of cotton production as a result of industrialization, which in turn created an enormous demand for cloth dye. जैसे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बढ़ने से कपड़ों को डाई करने का सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था. तो indigo was only the option through which we can dye our cloth in indigo color. That's why indigo was in very demand. So it was the answer. And बच्चा it's very important. ये important है. ये हमारे 2 मार्क के जो फिलअप्स आते हैं ना बोर्ड में, तो ये बहुत ज्यादा important है. The international demand for indigo was affected by the discovery of synthetic dye. But after the 18th century or the mid of the 19th century, we have the another option of synthetic dye. Synthetic color आता है ना डाई करने का, तो हमारे पास उसका ऑप्शन भी आ गया था, जिसकी वजह से इंडिगो की जो डिमांड थी मार्केट में डिक्रीज हो गई थी. एज इंडिगो वाज वेरी मच एक्सपेंसिव आल्सो, राइट. तो इसकी जगह हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया था, दैट इज द सिंथेटिक डाई. नाउ द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स. चंपारण में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो किसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था? इंडिगो प्लांटर्स के लिए. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, describe the main features of the permanent settlement. As you all know that what is the permanent settlement? And the permanent settlement, the revenue was fixed by the EIC. In order to get a stable revenue income, what they want? They want the stable revenue income. Most of the East India Company's officials believed that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. वो क्या चाहते थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंक्रीजमेंट हो, इसलिए वो अपना रेवेन्यू सोर्स इनकम बढ़ाना चाहते थे. रेवेन्यू सोर्स इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी अपनाई थी. इसमें क्या होता था? राजा और जो तालुकदार हुआ करते थे वो एज ए जमींदारी की तरह काम करते थे. अब सभी को याद होगा, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो इसके अंदर ये बात पढ़ी थी कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसमें एज ए इंटरमीडिएट कौन वर्क कर रहे थे? राजा और तालुकदार. दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स. राजा और तालुकदार को क्या कहा गया था कि आपको रेंट कलेक्ट करना है पीजेंट से, और वो किसको पे करना है? EIC को. इसके फीचर्स देखिए. द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली. इन्होंने जो रेवेन्यू का अमाउंट जो था पीजेंट्स के ऊपर वो फिक्स कर दिया था. Second, it was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers
at the same time encourages the zamindars to invest in improving the land. उन्होंने क्या कहा कि जब हम परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जब हम रेवेन्यू इनकम फिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक इनकम सोर्स ऐसा जनरेट हो जाएगा जो हमारे पास रेगुलर आता रहेगा, इसके हमें कभी कोई कमी नहीं होगी। और जो हमारे पास पैसा आएगा उससे जमींदारों को ये कहा जाएगा कि आप उस पैसे में से कुछ इन्वेस्टमेंट लैंड को इम्प्रूव करने में भी लगाइए। थर्ड, इफ द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू, इन केस अगर जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू then they usually did as the fixed revenue as very high, they lost their जमींदारी। इस केस में जमींदारी सिस्टम में जो जमींदार होंगे वो अपनी वैल्यू खो बैठेंगे, अपनी डिग्निटी खो बैठेंगे, उनको ज्यादा रेवेन्यू अब पे करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स फास्ट। ऑल ऑफ यू हैव रिटन। Now, how does the Mahalwari system differ from the permanent settlement? Now, the difference between the Mahalwari system and the permanent settlement. देखिए, what is the Mahalwari system? As we already read in our previous session, it is introduced by Holt Mackenzie. It came into effect in 1822 and in the northern western provinces of Bengal Presidency. And the permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis in 1793. बेटा ये जो years हैं इनको प्लीज याद कर लेना, ये हमारे MCQs की फॉर्म में आते ही आते हैं। एक तो किसने इंट्रोड्यूस किया था एंड इन विच ईयर, जैसे महलवारी सिस्टम का हो गया हॉल्ट मैकेंजी इन 1822 और परमानेंट सेटलमेंट का हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। It was devised as an alternative to the permanent settlement. It is aimed at ensuring stable revenue for the East India Company. The village headmen were the charge of the collecting revenue. The rajas and talukdar were in charge of the collecting revenue. अभी हमने पढ़ा permanent settlement में राजा और तालुकदार revenue collect करते थे और महलवारी सिस्टम में village headman अपॉइंट किया जाता था जो revenue collect करते थे। Next, the revenue amount was not fixed. In महलवारी सिस्टम रेवेन्यू का जो अमाउंट होता था वो फिक्स नहीं था। रेवेन्यू अमाउंट was not fixed and was to be revised periodically. और उन्होंने क्या बोला था कि इस रेवेन्यू सिस्टम को हम हर 3 महीने में या हर 6 महीने में रिवाइज करेंगे। The estimate revenue of the each plot within a village was added up to calculate revenue that each village of the mahal had to pay. रेवेन्यू कैसे एस्टिमेट किया जाता था? उनका जितना प्लॉट ऑफ लैंड होता था, समझना बेटा बात को, उनका जितना प्लॉट ऑफ लैंड होता था उसको एनालाइज किया जाता था, मेजर किया जाता था, उसके बाद उनका रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। दैट मींस हर एक सीजन का जो रेवेन्यू होता था वो अलग अलग होता था। आ गई बेटा बात समझ में? लेकिन ऐसा परमानेंट सेटलमेंट में नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट में एक बार जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया वो फिक्स कर दिया, वो आफ्टर 1 ईयर बाद या 2 ईयर बाद ही रिवाइज किया जाता था। Now, come to the next question. All of you written? Write down fast. Now, come to the next question. Give 2 examples which arose with the Munro system of fixing the revenue. What was the reason and what we can say? What problem they were facing at the time of fixing the revenue? The problem which arose with the new Munro system of fixing revenue were driven by the desire to increase the income from land. Revenue officials fixed too high to revenue demand. Peasants were unable to pay royals, fled the countryside and villages become deserted in many reasons. क्या हुआ? Munro system फेल इसलिए हो गया क्योंकि इन Munro system, जिसको हम महलवारी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि it is in the beginning it is started by the Thomas Munro, but after him it is introduced, or we can say it is further introduced by Holt Mackenzie. तो जो Munro सिस्टम था उसके अंदर जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने रेवेन्यू चार्जेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए थे जो पीजेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे। इस कारण पीजेंट्स अपनी कंट्री साइड को छोड़कर बाहर चले गए थे। एक तरह से वो रीजन पूरा खाली हो गया था, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया था। दैट्स व्हाई द Munro सिस्टम
failed. Got it बच्चा? आंसर समझ में आ रहे हैं ना? Okay. Now come to the next question. Why were Roids reluctant to grow indigo? Roids ready क्यों नहीं थे indigo grow करने के लिए? The answer is that the planters paid a very low price for indigo. Planters जो थे, जिन्होंने अपना लैंड रॉयड्स को दे रखा था काम करने के लिए, तो वो उनको जो पे कर रहे थे उसका बहुत कम पे कर रहे थे. The Royds was not in a position to even recover his cost. Earning a profit was a far-fetched idea. This means the Royd was always under debt. Royds जो थे कभी भी अपनी रिकवरी की पोजीशन में नहीं आ पाए. प्लांटर उनको क्या करते थे, रॉयड्स को लैंड दे देते थे काम करने के लिए, और फिर वापस ये जो सर्किल था चलता था. एक सीजन खत्म होने के बाद प्लांटर फिर रॉयड्स को हायर करके फिर उनको लैंड दे दिया करते थे काम करने के लिए, लेकिन वो उनको रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे टाइमली, इसलिए वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते थे. एक कर्जा चुकाने के चक्कर में वो दूसरा कर्जा ले लिया करते थे. तो प्रॉफिट की बात तो बहुत दूर थी, वो अपने डेट से ही बाहर नहीं आ पा रहे थे. इसलिए भी जो रॉयड्स थे वो इंडिगो ग्रो करने के लिए रेडी नहीं थे. इसके बहुत सारे रीजन थे. दूसरा रीजन ये भी था कि इंडिगो एक बार ग्रो करने के बाद दूसरी कोई और क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाता था, क्योंकि इंडिगो सारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज कर देता था. राइट. नाउ द नेक्स्ट, the planters insisted that the peasants cultivate indigo on the most fertile part of their land, but the peasants preferred growing rice on the best soil, as after an indigo harvest the land could not be used for the sowing rice. देखिए जो मैंने आपको बात बताई, इसमें क्या होता है, जब हम इंडिगो ग्रो करते हैं तो इंडिगो ग्रो करने के बाद वो लैंड सुटेबल नहीं रहता और कोई क्रॉप ग्रो करने के लिए, क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए भी पीजेंट्स को फर्टाइल लैंड की जरूरत पड़ती थी, और जो पीजेंट्स थे वो अपने 25% लैंड पे ही इंडिगो ग्रो करते थे. तो ब्रिटिशर्स उनको कहते थे कि आप अपने पूरे लैंड पे इंडिगो ग्रो कर लिए, जिसके लिए रॉयड्स मना कर देते थे. तो रॉयड्स ने क्या कहा कि हम हमारे लैंड के 25% लैंड पे ही आपका इंडिगो ग्रो करेंगे, बाकी लैंड पे हम राइस ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडिगो ग्रो करने के बाद हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, और राइस को ग्रो करने के लिए भी हमें फर्टिलिटी चाहिए होती है. इसलिए उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने के लिए मना कर दिया. गॉट इट बच्चा? आंसर समझ में आ रहे हैं? चलिए लिखिए इनको. क्लियर हो रही है ना आपको बात? और बेटा ये सारे क्वेश्चंस है ना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप आंसर सारे पॉइंट में लिखे हुए हैं, तो आपको लर्न करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए इसके आंसर्स भी पॉइंट में है, ऊपर हमने जो आंसर्स किए वो भी पॉइंट में है, हमने डिफरेंशिएट करे वो भी पॉइंट में करें. और बच्चा आपको एग्जाम में भी ऐसे ही टेबल बना के डिफरेंशिएट करना है. अगर डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तो इसी तरह से टेबल फॉर्मेट में आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके डिफरेंशिएट करना है. गॉट इट बेटा? चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Our last question, what were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में से इंडिगो का प्रोडक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया. The Royds began to refuse to grow indigo. जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि रॉयड्स रेडी नहीं थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया था. They were supported by the village headmen and जमींदार in their fight. इस लड़ाई में कुछ विलेज हेडमैन और जमींदार ने भी रॉयड्स की हेल्प करी थी. The scale of protest was so much that the government had to intervene. ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था, ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ गया. The Indigo Commission of set up to inquire into the problem. The commission accepted the fault of the planters. जब इंडिगो कमीशन के लिए कमिश्नर की मीटिंग्स बैठाई गई तो उन्होंने ये पाया गया कि इसमें प्लांटर्स की गलती है. And they were allowed to Royds to grow whatever they wish. और उन्होंने रॉयड्स को ये परमिशन दे दी कि आप जो ग्रो करना चाहते हैं अपने लैंड पे वो ग्रो कर सकते हैं. इस वजह से धीरे धीरे हमारे यहाँ पर स्पेशली बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन खत्म हो गया.
तो बच्चा दिस चैप्टर इज ओवर as we have done this NCERT question answer also, right? So all of you do it these question answers in your copy as you are doing right now also. जिसने नहीं किए हैं प्लीज वो क्वेश्चन आंसर्स जरूर कंप्लीट कर ले। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। ओके, now we will meet in the next session with the next chapter. Till then, bye.